বিশ্ববরেণ্য সেনাপতি বীর চিলারায় এবং মনীষী পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতি তুলে দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। এখন মাননীয় সাংসদেরা একটি টয় ট্রেনের প্রতিরূপ তুলে দেবেন। আমাদের উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য টয় ট্রেনের প্রতিরূপ তুলে দিবেন মাননীয় সাংসদগণ। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত দক্ষিণ ভারতের শিল্পশৈলীর আমাদের শিলিগুড়িতে তৈরি করা সেই জিনিস একটি ছবি তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রবীণ আগরওয়ালজি এবং সঙ্গে অন্যান্য সাংসদবৃন্দ। আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি। भारत माता की, भारत माता की। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের মার্গদর্শক 140 কোটি দেশবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় যিনি তার নিজ গুণে স্থান করে নিয়েছেন, শ্রদ্ধাস্পদ প্রাতঃস্মরণীয় প্রণম্য নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, তাকে প্রণাম এবং বন্দন জানাই। আমাদের এই সমাবেশে উপবিষ্ট আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সভাপতি লোকপ্রিয় সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদারজি, সম্মানিত মঞ্চ, সমবেত লাখো লাখো উত্তরবঙ্গের জনগণ, আমি আপনাদের শ্রদ্ধা, প্রণাম, নমস্কার, জোহার জানাই। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য আমরা এসেছি। তিনি সকাল থেকে আসাম সহ এই উত্তরবঙ্গের জন্য 4,500 কোটি টাকার নতুন উন্নয়ন প্রকল্প আমাদের দিয়েছেন, তার কথাই আমরা শুনব। আমি কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করি ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, চিলা রায়, দুর্গা মাল্লা, ভানু ভক্ত, ভগবান বিরসা মুন্ডা, চুরকা মুর্মু সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত স্বনামধন্য ব্যক্তি, মনীষী এবং আমাদের পথ প্রদর্শকদের। উত্তরবঙ্গ বরাবরই নরেন্দ্র মোদীজিকে দুহাত ভরে দিয়েছেন। 14তে দার্জিলিং দিয়েছেন, 19-এ দিয়েছেন, 21-এ দিয়েছেন, এবারেও এইবার মোদীজির গ্যারেন্টি, এইবার इस बार फिर एक बार পরিবারবাদী, ভ্রষ্টাচারী, তুষ্টিকরণের মাস্টার তৃণমূলকে এবারে সব লোকসভা কেন্দ্র থেকে উৎখাত করবেন তো? এটাতে উৎখাত করুন। এরপরে ডবল ইঞ্জিন আসবে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে। বিকশিত ভারত, বিকশিত বাংলা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি জয়, শ্রীরাম
জয় জয় শিব চণ্ডী, জয় জয় শিব চণ্ডী, জয় জয় শিব চণ্ডী। ভগবান বিরসা মুন্ডা জিত কর, ভগবান বিরসা মুন্ডা জিত কর। জয় গোরখা, জয় গোরখা, জয় গোরখা, জয় গোরখা। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। আমি অনুরোধ করব আমাদের অত্যন্ত প্রিয় রাজ্য সভাপতি, বালুরঘাটের জনপ্রিয় সাংসদ শ্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য। ভারত মাতা কি। সূর্য দেবতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছেন বলে দেখুন টেম্পারেচার কম করে দিয়েছে। দু হাত তুলে বলুন ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, আরে নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মঞ্চ উপবিষ্ট সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি আমাদের সকলের হৃদয়ের মণি, যিনি উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে স্নেহের সাথে দেখেন, জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরবঙ্গের তরফ থেকে একবার ধন্যবাদ জানাবেন, অভিনন্দন জানাবেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, উপস্থিত আছেন আমাদের দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, জন বাংলা, লোকাল এমপি রাজু বিষ্টা সহ জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি সহ সমস্ত মঞ্চ, সমস্ত এমপি, বিধায়ক, রাজ্যের পদাধিকারী, স্থানীয় জেলা সভাপতি অরুণদা থেকে শুরু করে সবাইকে একবার হাততালি দিয়ে স্বাগত জানিয়ে দিন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান আধা ঘন্টা পরে চলছে, লেট চলছে, সময় নেই বন্ধুগণ। শুধু দু চারটি কথা বলতে চাই। গতকাল মহিলা দিবস ছিল, মহিলা দিবস শিবরাত্রি পড়ার জন্য গতকাল আমরা পালন করতে সেইভাবে পারিনি, কিন্তু আজকে আমি সেই মাকে, সেই মহিলাকে, সেই নারীকে সম্মান জানাতে যাই যিনি ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীর মতো পুত্র সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন, উপহার দিয়েছেন ভারতবাসীকে। সেই মাকে সম্মান জানাতে চাই আজকে মহিলা দিবসের প্রাক্কালে। আর আমাদের দিদিদের জন্য গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্যাসের দাম 100 টাকা কমিয়ে দিয়েছে। কি খবর পেয়েছেন তো? পেয়েছেন তো? সেই জন্য দিদিরা একবার জোরে হাততালি, শুধু দিদিরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, নারীদের সম্মান বাড়ছে। নারীরা রান্নাঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে গেছে একজন আদিবাসী পরিবারের মহিলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। এটা বলতে যাওয়া ভারতবর্ষ। উল্টো দিকে কি দেখতে পাচ্ছি? 7 তারিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার বুকে মিছিল করলেন। আরে দিদি, আপনার যদি দম থাকে সন্দেশখালিতে গিয়ে মিছিল করুন, মহিলারা বুঝিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল, মহিলারা আপনাকে বুঝিয়ে দেবে। সেই দম নেই। সন্দেশখালির বাঘ বিড়াল হয়ে সিবিআইয়ের কাছে মিউ 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 করে বেড়াচ্ছে। তাই দিন আসছে সমস্ত বাঘেরা বিড়াল হবে, চিন্তা নেই। এইসব যারা নকল বাঘ তারা বিড়াল হতে যাচ্ছে। তাই আমি আমার আজকে কথাকে দীর্ঘায়িত করব না। যেভাবে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ সিট একটা বাদ দিয়ে সব সিট আপনারা নরেন্দ্র মোদীকে 19 সালে উপহার দিয়েছিলেন, 24-এও সেটা করতে হবে। কি করবেন তো? 24-এ দেবেন তো? দেবেন? তাহলে 2 হাত মুঠ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রতিজ্ঞা নিন, আমার সাথে বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন এগুলো আমরা তুলব না, পিছন থেকে দেখতে অসুবিধা হয়। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। আমরা যার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছি, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, বিশ্ব বরেণ্য নেতা श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मैं आग्रह करूंगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को संबोधन के लिए।
भारत माता की। আমার প্রিয় মা, ভাই, দাদা, দিদি এবং বোনেদের সাদর নমস্কার জানাই। मेरो प्यारो आमा, बाबा, दाजू, भाई, दीदी, बहनी सबैलाई ढेरों ढेरों नमस्कार। मोर प्यारा माई बाप, दादा भाई, दीदी बहन सब कोई के नमस्कार। चाय बागान में काम करने वाले सभी परिवारजनों को भी इस चाय वाले का प्रणाम। मैं जब भी नॉर्थ बंगाल आया हूं तो आप सभी की तरफ से भरपूर आशीर्वाद मिला है। विशेष रूप से हमारी माताएं, बहनें, बेटियों की तरफ से जो स्नेह मिलता है वो अद्भुत है। यहां तो जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा तक के अनेक साथी यहां आए हैं। अपने परिवार के लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा चाहता हूं, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। आज सुबह मैं काजीरंगा में था, फिर अरुणाचल गया, फिर आसाम में कार्यक्रम किया, फिर यहां आया हूं और यहां से अभी काशी जा रहा हूं। और यहां रास्ते में 12 किलोमीटर का रोड शो जो प्लान किया हुआ नहीं था, अचानक, और उनके सम्मान में मैं जरा गाड़ी धीरे चला रहा था और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। आप सबको दिक्कत हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं यहां कई बार आया हूं, इसी मैदान में कई बार आया हूं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं उधर वो रोड भी पूरा भरा पड़ा है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और जब यहां आते हैं ना तो एक प्रकार से मिनी भारत के दर्शन होते हैं, लघु भारत नजर आता है। जितनी विविधता, जितनी वाइब्रेंसी इस क्षेत्र में दिखती है, वैसी कम ही जगह पर नजर आती है। साथियों, मैं जिस तरह का जीवन जीकर यहां आया हूं, मैंने देश की अनेकों माताओं को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। और इसीलिए मैं शौचालय, नल से जल, मुफ्त बिजली कनेक्शन, बैंक का खाता, प्रेगनेंसी के समय आर्थिक मदद, ऐसी हर बात पर ध्यान रखता हूं, जोर दे रहा हूं और मेरी हर माता बहन के जीवन, हर गरीब परिवार का जीवन सरल हो, इसके लिए मैं कोशिश करता हूं। और हमारा ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो हमारे चाय बागानों और चाय श्रमिकों का क्षेत्र है। यहां पानी और लकड़ी का प्रबंध करने में
कितनी मुसीबत हमारी बहनों को झेलनी पड़ती थी, ये समस्याएं सबको दिखती थी। लेकिन पहले लेफ्ट ने आपकी नहीं सुनी और फिर टीएमसी ने भी आपको नजरअंदाज कर दिया। ये तो गरीबों की जमीन हड़पने में जुटे थे। इसलिए जब आपने मुझे अवसर दिया तो मैंने यही सुविधाएं अपने परिवार के आप सभी सदस्यों को पहुंचाई है। अब देखिए, हमने बहनों के उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार 14 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन भी नहीं देने दे रही। बीते कुछ समय में हमने उज्ज्वला की करोड़ों बहनों के लिए गैस सिलेंडर बहुत सस्ता किया। कल महिला दिवस पर बहनों के लिए एक और फैसला हमने लिया है। अब सभी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 100 रुपये और सस्ता हो जाएगा। साथियों, जो परिवार का सदस्य होता है वो आपके सुख दुख का भी साथी होता है। मैं जानता हूं, कोरोना के दौरान मेरे गरीब परिवार कितनी बड़ी चिंता से घिरे हुए थे। इसलिए मोदी ने देश के अपने परिवारजनों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की, क्योंकि मेरा मकसद यही था, किसी भी गरीब का बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए। किसी गरीब का घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। और अब इस योजना को, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और इसका बहुत बड़ा लाभ चाय बागान में काम करने वाले हमारे श्रमिक साथियों को मिलेगा। लेकिन साथियों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इनका जो इंडी गठबंधन आपको मुफ्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है। यहां बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। मोदी ने अपने गरीब परिवारों को राशन के साथ साथ मुफ्त इलाज की गारंटी भी दी है। लेकिन भ्रष्ट और गरीब विरोधी टीएमसी सरकार यहां आयुष्मान योजना लागू ही नहीं कर रही है। टीएमसी सरकार आपको कदम कदम पर लूट रही है। मोदी मनरेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेजता है, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार ने अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए यहां 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बना करके लोगों को दे दिए। मोदी गरीब के घर के लिए पैसा भेजता है तो टीएमसी सरकार तोलियाबाजों के चुने लोगों को
आपका पैसा दे देती है। टीएमसी को आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना, यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। और साथियों, नॉर्थ बंगाल के साथ तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के इंडी गठबंधन ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। इन लोगों ने इस क्षेत्र को विकास से तो वंचित रखा ही है, समाज के भीतर भी खाई पैदा की। लेकिन भाजपा के लिए एक एक गोरखा का उत्साह, एक एक राजवंशी का साहस, एक एक आदिवासी की दृढ़ता और हर बंगालियों की रचनात्मकता, यही विकसित बंगाल से विकसित भारत के निर्माण की एक ऊर्जा है। भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया। हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही है, जो चुनौतियां रही है, उनके प्रति भी बीजेपी हमेशा संवेदनशील रही है। बीजेपी ने आपकी चिंताओं को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। अब भी हम समाधान के नजदीक है। बीजेपी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। साथियों, भाजपा के पास नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए एक स्पष्ट रोड मैप है। हम यहां टी, टूरिज्म और टिम्बर से इससे जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने में जुटे हैं। इसके लिए यहां जरूरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। कम क्षेत्र में चाय उगाने वाले बंगाल के करीब 40,000 छोटे टी ग्रोवर्स का हित भी भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा ने, एनडीए ने छोटे टी ग्रोवर्स को
किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। भाजपा ने छोटे टी ग्रोवर्स को पीएम फसल बीमा योजना के लाभ से जोड़ा। भाजपा सरकार ने यहां छोटे टी ग्रोवर्स को सिंचाई की सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद की। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खाते में जाए, हमने इस दिशा में भी लगातार काम किया है। साथियों, गरीबों के लिए निरंतर काम की वजह से भाजपा सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूछता है। मोदी हर गरीब के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रहा है, लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आए हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शीर्ष पर रखने के लिए साजिशें करते हैं। ये टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट का इंडी गठबंधन भी तो यही करता है। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है, एनडीए का गठबंधन है। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मुझे किसी के लिए भी कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ना है, कोई बंगला गाड़ी नहीं छोड़नी है। मुझे तो संतोष तभी होता है जब आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य को मैं पक्के घर में सारी सहूलियत के साथ जीवन जीते देखता हूं। साथियों, भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां रेल, रोड जैसी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में उसके चौड़े हाईवे और यहां बाईपास बनने से आना जाना और आसान होगा। आज नॉर्थ बंगाल की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। हर किसी को इच्छा है कि यहां से आधुनिक ट्रेनें चलें। आने वाले 5 वर्षों में यहां की आधुनिक कनेक्टिविटी नई बुलंदी पर पहुंचने वाली है। साथियों, किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। 2 दिन पहले ही जूट किसानों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जूट का समर्थन मूल्य
285 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इससे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के लाखों जूट किसानों को लाभ होगा। 10 वर्ष पहले जूट का एमएसपी 2,400 रुपये था और आज ये 5,300 रुपये यानी 2 गुने से भी अधिक हो चुका है। किसान हो, नौजवान हो, नारी शक्ति हो, गरीब हो, ये विकसित भारत के मजबूत स्तंभ है। इसलिए मोदी की हर गारंटी इन सभी को सशक्त करने के लिए है। तभी आज देश कह रहा है, गांव गांव से आवाज उठ रही है, बंगाल के कोने कोने से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और आप याद रखिएगा, गरीब विरोधी, दलित, आदिवासी, महिला विरोधी टीएमसी को हटाने का दरवाजा लोकसभा चुनाव से खुलेगा। इसलिए नॉर्थ बंगाल की सभी लोकसभा सीट, सभी पोलिंग बूथ, हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। खिलेगा ना? खिलेगा ना? मेरा एक काम और आपको करना है। आप करेंगे मेरा एक काम? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप घर घर जाकर कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। इतना मेरा काम कर देंगे। देखिए, हमारा संकल्प है विकसित भारत। होना चाहिए ना? भारत विकसित होना चाहिए ना? उसके लिए बंगाल भी विकसित होना चाहिए ना? तो विकसित भारत के संकल्प के लिए आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को आप सब प्रकट कीजिए। आपके मोबाइल फोन जो वहां ऊपर रोड पे खड़े हैं वो भी निकालें। सबके मोबाइल फोन हर एक फ्लैश लाइट चालू करके, ये विकास का संकल्प है, ये विकसित भारत का संकल्प है, ये विकसित बंगाल का संकल्प है। हम आन बान शान के साथ भारत को विकसित बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। আমাদের সভা तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपनी चीजों को तो याद दिलाया ही, साथ ही टीएमसी पर भी जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं वो भी आपको बताते हैं।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ पर लघु भारत के दर्शन होते हैं। इतनी विविधता बाकी अन्य जगहों में काफी कम नजर आती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि चाय बागान में काम करने वाले सभी को इस चाय वाले का प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं जब भी नॉर्थ बंगाल आया हूं, आप सबकी तरफ से भरपूर प्यार मिला है। उन्होंने कहा कि भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने देश की अनेकों माताओं को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए देखा है और शौचालय, नल से जल, मुफ्त बिजली कनेक्शन, बैंक का खाता, प्रेगनेंसी के समय आर्थिक मदद पर लगातार जोर दे रहा हूं, जिससे कि महिलाओं का जो जीवन है वो सरल हो। मैंने उज्ज्वला का कनेक्शन मुफ्त दिया, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार ये कनेक्शन देने ही नहीं दे रही है। 14 लाख बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन नहीं देने दे रही टीएमसी। साथ ही पीएम ने कहा कि सभी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 100 रुपए और सस्ता हो जाएगा, जिसका ऐलान बीते कल महिला दिवस पर किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जो परिवार का सदस्य होता है वो आपके सुख दुख का भी साथी होता है। वहीं कोरोना का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और कोरोना का जिक्र करते उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। मेरा मकसद था कि किसी भी गरीब का जो बच्चा है वो भूखा नहीं सोना चाहिए, साथ ही गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए।